Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are doing fine and you have been through the previous chapters. We have been talking about a lot of things which are related to brand and branding and how to build customer based brand equity, how to create value in their minds, the depth of awareness and breadth of awareness, making trying to get the top slot in the minds of the consumers. Today we would be talking about secondary brand knowledge in order to create more awareness, that desired brand knowledge. So what secondary elements are required to create that brand knowledge? I will be giving you some very interesting examples today, so that you may be able to understand as to why these secondary brand knowledge elements or why the secondary brand knowledge is necessary in order to build brand equity. Up till now we have been talking about the elements such as brand name, logo, symbol, characters, packaging, slogan, which in turn should be memorable, meaningful, appealing, transferable, adaptable and protectable. Now in order to have all of these present, the main action that we would like to take is that it should have the depth, which is recall and recognition, and breadth, purchase and consumption. Then while we are at it, we also are developing marketing programs in which we are talking about the product with the tangible and intangible benefits, the price, what value does the customer carry in his or her mind, how we manage our distribution channels, and how we manage our communication strategy. Okay? Now we are coming to the secondary associations. We would talk about company, country of origin, channel of distribution, again distribution channel or channel. Then what other brands are there, who can endorse our brand, and what events can be undertaken. So awareness, meaningfulness and transferability are the key elements over here as well. So if the brand associations are strong, we would like it to be strong so that it would be relevant and consistent. It should be favorable, desirable and in turn deliverable. It should be unique, your points of parity and points of difference. If we have all these things in a positive manner, then we would have the possible outcomes that we would be looking at would be greater loyalty. It would be less vulnerable to the competition. We would be having large margins, profit margins. It would be more elastic to price decrease and more inelastic response to price increase. There would be great trade cooperation. There would be increased marketing communication efficiency and effectiveness. There will be more licensing opportunities available for us and more favorable brand extension evaluation. So these are the tools on the left hand side. In the center is the brand knowledge, and on the right hand side is the branding effect or branding benefits, right? So let's start off. Why we need these secondary associations? We need to create new brand associations. जो ब्रांड के बेनिफिट्स और एट्रीब्यूट्स है ना, वो तो हमने बना लिए, ठीक है। और जो है जब हमने ये कर लेते हैं तो हमें जो है एक टाइम आ जाता है कि जब हमें जो है नए जो है एसोसिएशंस बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। लोगों को वो एट्रीब्यूट्स याद होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो जो उसका चार्म होता है ना ब्रांड का, वो ख़त्म होने लग जाता है, ठीक है ना।
वो फिर इसलिए आपको नई से नई चीज़ जो है वो ढूंढने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आपको जो है एग्जिस्टिंग ब्रांड नॉलेज की जो अवेयरनेस है उसको इंक्रीज करना है इन नई एसोसिएशन से, उनको ज़्यादा मीनिंगफुल बनाना है, और वो जो जब आप वो मीनिंगफुल बन जाते हैं तो उसको आपने ट्रांसफ़र करना है टू योर कंज्यूमर्स। इसमें नेस्ले एंड कोक जो है वो प्राइम एग्जाम्पल्स हैं नई ब्रांड एसोसिएशंस को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, नेस्ले इज़ अ बिग फूड कंपनी, फूड जायंट, वेयर एज कोक जो है वो कोला में इज़ नंबर 1। जितनी ब्रांड इक्विटी इसकी है शायद ही किसी और ब्रांड की हो। इट इज़ वर्थ ओवर $67 बिलियन। ठीक है ना। तो उन्होंने जो है यहाँ पे जो है जिस तरह मैंने आपको ये पहले भी दिखाए थे, ये कोक के कैंस हैं। दिस इज को ब्रांडिंग इन टर्म्स, जो यूनिवर्सल स्टूडियोज हैं वो उनकी ये जेम्स बॉन्ड की मूवी है। सो लाइक बॉन्ड के साथ उन्होंने एक को ब्रांडिंग लाइसेंस और ये जो है करके ये कोका कोला ज़ीरो के कैंस जो हैं निकाले थे या बॉटल्स निकाली थी, विच वर कमेमोरेटिव एंड लिमिटेड एडिशन। सो इसमें जो है दोनों का फ़ायदा था। एक तो आपकी ऑटोमेटिकली जो है एक प्रोडक्ट तो है ही है, तो साथ में जो है मूवी को भी उसमें एक बूस्ट मिलता है बिकॉज लॉट ऑफ पीपल नो कोका कोला। हो सकता है दे आर नॉट अनअवेयर ऑफ बॉन्ड, बट देन अगेन थ्रू दीज कोका कोला कैंस दे वुड नो दैट देयर इज अ न्यू मूवी कमिंग। इसी तरह नेस्ले जो है वो इट इज़ एक्सपैंडिंग इनटू डिफरेंट एरियाज। केचप भी है, सूप भी है, नूडल्स भी हैं, दूध भी है, टी वाइटनर भी है, पानी भी है, कॉफ़ी भी है, सो सीरियल्स भी हैं। गर्ज ये कि ये जो है इन्होंने भी अपने आप को एक्सपैंड कर लिया, तो वो जो अम्ब्रेला है इनकी वो काफ़ी एक्सपैंड कर गई है, और उसकी वजह से दे आर रियली thriving in the global market. A brand associations may themselves be linked to other entities, creating secondary associations. कंपनी, ठीक है, वो जो कंपनी है थ्रू ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज आप उसके साथ एसोसिएट करते हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन बताते हैं, मकसद आप जो है जैसे मर्सिडीज है या BMW है या ऑडी है, तो उनकी जो इंजीनियरिंग है वो एक कट थ्रोट इंजीनियरिंग आप समझ लें, या दे आर बेटर इन मेकिंग दीज परफॉर्मेंस कार्स एंड लग्जरी कार्स। तो जब भी जर्मनी का नाम आएगा कहीं पे भी, तो ये लग्जरी कार्स जो हैं वो फ़ौरन पॉपअप कर जाती हैं आपके जहन में, ये नाम आपके पास आ जाते हैं, जिनमें पोर्श हो गई, मर्सिडीज़ हो गई, BMW हो गई, ऑडी हो गई। ठीक है, दे हैव अ लेगेसी एंड अ हिस्ट्री विद देम, सो वो आपको फ़ौरन पता चल जाता है। सीमेंस इज़ अनदर जर्मन कंपनी जो कि बहुत मशहूर है इंजीनियरिंग में। ठीक है, फिर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि आप किस तरीके से उनको अपनी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो यहाँ पे जिस तरह प्रॉक्टर एंड गैम्बल की मैंने आपसे कुछ लेक्चर्स पहले बात की थी कि UDL उनको जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, तो वो जो है दे आर एसोसिएटेड, तो वो जो चैनल है वो उस डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से जो है आप उसको रिलेट कर लेते हैं। फिर अदर ब्रांड्स जो हैं को ब्रांडिंग है, जिस तरह सोनी एंड एरिक्सन। ठीक है ना, ये मैंने अभी आपको जो पिछली स्लाइड दिखाई है इसमें जो है ये कोक एंड क्वांटम ऑसोलो 007, सो ये भी को ब्रांडिंग के ज़ुमरे में आती है। देन हमारे यहाँ जो है को ब्रांडेड कार्स है, कैलटेक्स एंड आई गेस सिटी बैंक हैड अ को ब्रांडेड कार्ड, एयर ब्लू एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड हैड अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। सो लाइक वो जो है लोगों को एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप उनके साथ बैंकिंग कर रहे हैं, प्लस इफ़ यू ट्रैवल विद एयर ब्लू
using that credit card, you would get extra air miles as well as you would get a discount. You would also get preference. तो वो जो है सारी चीज़ें. Then there is a special case of co-branding is ingredient branding. Ingredient branding ये है कि already एक brand जो है वो exist कर रहा है, लेकिन अपने आप को वो reinforce करने के लिए एक और brand use करता है जो कि अपनी कैटेगरी में बहुत स्ट्रांग होता है. जिस तरह डेल के कंप्यूटर्स हैं, HP के कंप्यूटर्स हैं, वो जो है इंटेल का प्रोसेसर यूज़ करते हैं. तो वो इंटेल इनसाइड उन्होंने लिखा था, दैट इज़ इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग, कि जो कोर प्रोसेसर है ऑन विच दिस होल कंप्यूटर वर्क्स इज़ फ्रॉम इंटेल. ठीक है, तो वो चीज़ है. फिर करेक्टर्स थ्रू लाइसेंसिंग. अब जो करेक्टर्स हैं वो जिस तरह स्पाइडरमैन है, सुपरमैन है, डोनाल्ड डक है, बक्स बनी है, ये सारे करेक्टर्स जो हैं वो आप थ्रू लाइसेंसिंग दे देते हैं. तो वो क्लोथिंग में, बैग्स में, बुक्स पे, गर्ज इस किस्म की चीज़ें आप जो हैं वो बनाते हैं और मार्केट में लेके आते हैं. तो वो भी है. तो वो इन इटसेल्फ वो जितने करेक्टर्स हैं वो ब्रांड हैं. एंड देन वॉट एवर यू सेल इज़ ऑल्सो ब्रांडेड. तो यू चार्ज अ प्रीमियम प्राइस. फिर सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स हैं. आप देखेंगे आजकल जिस तरह अली जफ़र इज़ कमिंग ऑन टीवी, मोबिलिंग के ऐड में. शान है वो मोबिलिंग के ऐड में आ रहे हैं, सर्विस के ऐड में आ रहे हैं. करीना कपूर आ रही है, कटरीना कैफ आ रही हैं स्लाइस के ऐड में. तो ये सेलिब्रिटी जो हैं, सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं और वो इंडोर्स कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स को. तो इनकी एक अपनी फॉलोइंग है. फिर इवेंट्स थ्रू स्पॉन्सरशिप जो है, बहुत सारी इवेंट्स होती हैं जिनमें आप स्पॉन्सरशिप्स करते हैं, और उसमें जो है ये हमारे यहाँ क्रिकेट हो गई, फुटबॉल हो गई, बास्केटबॉल एंड अदर, टेनिस, ये सारी जो इवेंट्स हैं, ओलंपिक्स, ये सब स्पॉन्सर की जाती हैं. इसमें जो है बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं इसको स्पॉन्सर करने में. और फिर जो है थर्ड पार्टी सोर्सेज हैं. थर्ड पार्टी सोर्सेज में जो है लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अवार्ड्स होते हैं. ठीक है ना, जैसे आपको फिल्म फेयर अवार्ड्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं. दूसरे जो हैं अपना मैल्कम बालरिज अवार्ड है फॉर एक्सीलेंस, जो फिर जो है आपके रिव्यूज़ हैं डिफरेंट टेक्निकल जर्नल्स में, मैगजीन्स में, या जो फैशन मैगजीन्स में ये आपके रिव्यूज़ वगैरह आते हैं ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स विच मेक अ डिफरेंस. अब ये क्या होता है कि these secondary associations may lead to a transfer of response type associations. रिस्पॉन्स में क्या है कि जजमेंट और फीलिंग की हम बात करते हैं. ठीक है ना, तो आप जो है वो क्रेडिबिलिटी देख रहे होते हैं. सो वो जो है ये एवरीडे लाइफ में भी अगर आप देखें तो जो रिस्पॉन्स होती है या फीलिंग होती है वो ऐसे ही है कि आप किसी XYZ आदमी की बात कर लें. ठीक है ना, तो फौरन अगर आपको कहा जाए कि जी आपने जो है फलाने आदमी को जाके मिल लें और वो आपका जो है काम वहाँ पे हो जाएगा, तो आप जब उसका नाम सुनते हैं तो आप फौरन जजमेंटल हो जाते हैं कि नहीं नहीं उसने क्या काम करना है, उसने कभी आज तक किसी का काम किया है या सो लाइक वो जो है, और एक वो नेगेटिव फीलिंग अराउज कर जाती है. सो लाइक जो वो जो क्रेडिबिलिटी है दैट मीन्स कि उस आदमी की ठीक नहीं होती है. somehow you have heard something about it. इसी तरह जो है ब्रांड में भी होता है. कुछ ब्रांड्स के बारे में आप सुनते हैं, आप कहते हैं हाँ ठीक है, आंख बंद करके ले लो यार. ठीक है, और कुछ में होता है कि आप कहते हैं कि नहीं यार ये जो है ना ये ठीक नहीं है, मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं है, इट डजंट साउंड राइट. सही, तो वो जो फीलिंग्स है उसी तरीके से आ जाते हैं. तो आप जो है जो दूसरी जो रिस्पॉन्सेज हैं वो क्या कहते हैं, वो मीनिंग है कि जी सर्विस की परफॉर्मेंस या सर्विस का इमेज जो है वो क्या कहता है. ठीक है ना, उस सर्विस या उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और उस प्रोडक्ट और सर्विस की इमेज, तो वो भी है. सो दीज आर ऑल्सो दो रिलेटेड टू दिस जजमेंट एंड फीलिंग कि वो जो परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस किसी ने तो वैल्यूएट की होगी ना,
जिसकी वजह से वो आपने अपनी जजमेंट दे दी। जो इमेज है वो किसी ने देखा होगा तो उसके बाद उस पर जो जजमेंट है वो दे दी गई। देयर आर टाइम्स के मकसद आप जाते हैं, आपको अपेरेंटली चीज़ ठीक होती है, बट व्हेन यू नो हैव अ लुक एट इट्स पैकेजिंग, इवन देन यू से कि नहीं यार ये सही नहीं लग रही है। और कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं, उनकी पैकेजिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप जो है ऑटोमेटिकली यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट एंड यू बाय इट। सिमिलरली आप जो है जैसे जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, बैंक में, रेस्टोरेंट में, आप एक नज़र देखते हैं तो वहाँ की जो स्मेल है और जो कलर स्कीम्स हैं वो आपको फ़ौरन जो है ना अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल कर देंगी। और उसी से जो है उस इमेज से ही आप उसकी परफॉर्मेंस पे एक जजमेंट कायम कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपकी फीलिंग्स जो हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव उसी वक्त बन जाएंगी, और यही ब्रांड का भी हाल है। सो वो जो है दीज सेकेंडरी एसोसिएशंस आर वेरी मच नेसेसरी कि दे ट्रांसफर अ पॉजिटिव feeling or give you a positive judgment, so that you may be able to connect with that brand in a positive manner. Co-branding की बात कर रहे हैं कि जी occurs when two or more existing brands are combined into a joint product or are marketed together in some fashion. अब जो है co-branding में क्या किया कि जी दो ब्रांड्स हैं डिफरेंट, वो ज्वाइन करते हैं किसी एक ब्रांड को बनाने के लिए, ठीक है, किसी एक मकसद के लिए उन्होंने वो बनाया होता है। तो सबसे बड़ी जो एग्जांपल हमारे पास है वो सोनी एरिक्सन की है। सोनी हैज़ ऑलवेज बीन गुड इन प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट फॉर म्यूज़िक एंड टीवी, ठीक है। उनकी जो गेम्स हैं वो बहुत, जो गेमिंग कंसोल्स हैं बहुत पॉपुलर हैं। ऑन द अदर हैंड एरिक्सन वाज इज अ टेलको कंपनी, दे वर गुड इन मेकिंग टेलीफोन्स। तो इट वाज अ नेचुरल जॉइनिंग ऑफ हैंड्स, नेचुरल मैरिज इन द मेकिंग, के उनकी एक्सपर्टीज और उनकी एक्सपर्टीज दोनों को मिला के एक प्रोडक्ट बना ली जाए एंड फाइट इट आउट विद people like Nokia, fight it out with people like Apple and Samsung, which were also in the market and gaining some space or market share. तो ये जो है और आपने देखा है कि ये जो सोनी एरिक्सन have produced some very beautiful phones, and they were the ones who introduced this concept of PDA into a mobile phone, ठीक है ना। तो PDAs are personal digital assistants। तो वो जो है, जो पहले एक आपके पास एक हर आदमी के पास एक डायरी होती थी जिसमें जो है कॉन्टैक्ट नंबर्स होते थे और उसका कैलेंडर होता था, मीटिंग्स वगैरह जो भी करनी होती थी, थिंग्स टू डू, वो सब उसमें होता था। तो फिर वो डिजिटल बन गया। तो सोनी एरिक्सन ने जो है वो क्या किया कि वो अपने मोबाइल फ़ोन में उन्होंने सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करके दिखा दिया कि जी ये जो डिजिटल असिस्टेंट है वो जो है it can be put into a mobile phone, and then they had this GPS, and then they had wonderful games and good camera in the mobile phones. So their product was one of the top of the line products available. फिर Yoplait and Trix योगर्ट आ गया। Yoplait जो है एक यूरोपियन ब्रांड है जो योगर्ट सेल करते हैं या दही, जिसकी बात जिस तरह हम नेस्ले का दही आपको मिलता है उसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स होते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि ट्रिक्स जो है वो एक चॉकलेट है, तो उन्होंने उस चॉकलेट को उसके साथ उन्होंने एक बनाया। तो योप्लेट ट्रिक्स योगर्ट जो है उन्होंने वो इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, जिसके अंदर चॉकलेट भी थी, क्योंकि चॉकलेट जो है वो काफ़ी, तो क्योंकि ट्रिक्स जो है वो दे वांटेड टू गेट इनटू दिस dairy business, but they decided against it. They said कि यार why should we invest into that. Yoplait वाले जो हैं they have got a beautiful product, let's join hands with them and come with them.
फिर नेस्ले की जो चीरियोज कुकी बार है, चीरियोज जो है वो ब्रेकफास्ट सीरियल है एंड कुकी जो है वो अलग उनकी एक होती है, तो उन्होंने जो है वो कुकी बार बना दी चीरियोज के फ्लेवर में, और उसमें वो चीरियोज जो है वो एम्बेड कर दिए गए, मकसद मिक्स कर दिए गए, एंड इट वाज अ गुड प्रोडक्ट एंड वेरी पॉपुलर इन द यूरोप। अब एडवांटेजेस क्या हैं इसको ब्रांडिंग के? एडवांटेजेस हैं कि यू बोरो द नीडेड एक्सपर्टीज, ठीक है ना, यू डू नीड नॉट टू इन्वेस्ट इनटू दैट, और फिर यू लेवरेज इक्विटी यू डू नॉट हैव। जाहिर सी बात है कि जो जिसकी एक्सपर्टीज ही नहीं आपके पास होगी तो आप उसकी इक्विटी किस तरह लेवरेज कर सकते हैं अपने उसमें, ठीक है ना। तो वो जो दो स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स जब साथ आ गए, जिस तरह सोनी एरिक्सन में आ गए, तो इन दोनों की इक्विटी जो थी वो मर्ज्ड इनटू वन ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, ठीक है। देन इस तरीके से क्योंकि जो है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस कर जाती है, क्योंकि आप दोनों जो है शेयर कर रहे होते हैं उसको, ठीक है। और एक्सपैंड ब्रांड मीनिंग इनटू रिलेटेड कैटेगरीज के इंक्रीज एक्सेस पॉइंट्स ब्रॉडन मीनिंग इन द सेंस कि देन आप दोनों की अपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है ना, आप उनको यूटिलाइज कर रहे होते हैं, अपने रिसोर्सेज जब कंबाइन कर लेते हैं तो आप जो है you give a new meaning to this brand, and you increase the access points because you have of your different distribution channels. तो लोग जो हैं they have more access, they could know more about you, the knowledge or the awareness is created in such a way that people could really associate themselves with you, and this in turn is a source of additional revenue. और यही हमारा मकसद होता है कि वी नीड टू एड रेवेन्यू टू आवर किटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। डिसएडवांटेजेस भी हैं, जहां एडवांटेजेस हैं वहां डिसएडवांटेजेस भी होंगे। उसमें जो सबसे बड़ा मसला होता है वो लॉस ऑफ कंट्रोल होता है, ठीक है, बिकॉज आप दोनों के रिसोर्सेज तो साथ काम कर रहे होते हैं, बट देन अगेन वो जो है आप कुछ चीजें जो है यू जस्ट थिंक यार वो दे वुड लुक आफ्टर एंड द अदर पार्टी वुड थिंक यू वुड लुक आफ्टर। सो लाइक अगर क्लियर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर नॉट पुट इन टू प्लेस, सो यू लूज कंट्रोल, and when you lose control you tend to lose on your revenues, you tend to lose on your customers, because then the trust factor that or the peace of mind that a brand has for a consumer is not there. देखिए ना, आप एक ब्रांड जो है वो क्यों खरीद रहे हैं? इसलिए क्योंकि आप जो है उस ब्रांड पे ट्रस्ट करते हैं ना, उसके प्रॉमिस पे कि दैट ब्रांड इज गोना टेक केयर ऑफ यू। वो पीस ऑफ माइंड होता है, इसीलिए आप उसके ज्यादा पैसे भी दे रहे होते हैं। लेकिन जब आपको वो लगे कि नहीं यार इस तरह नहीं है, ब्रांड जो है वो डाइल्यूट हो गया है, वो अपनी जो है जो एट्रीब्यूट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा? आपका जो कस्टमर है वो स्वे कर जाएगा लेफ्ट और राइट टूवर्ड्स योर कंपटीशन, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक जो है फिर वो आनी शुरू हो जाती है, और वो जो है वो अफेक्ट जो है दोनों पार्टीज को कर रही होती है, एंड ब्रांड का जो फोकस और क्लैरिटी है वो भी नहीं रहती है। इट हैज टू बी ट्रीटेड इन अ सेपरेट एज अ सेपरेट एंटिटी। अगर आप जो है ये दोनों को कंबाइन करके ये काम कर रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि यू नीड टू हैव a separate head to run that co-branding part, who should have the control and be held responsible for all its activities, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो है आपकी जो फोकस और क्लैरिटी है वो नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी टाइम्स में लोगों को नहीं पता होता कि हाउ दे हैव टू रिएक्ट, क्योंकि आपका एक अपना कॉर्पोरेट कल्चर होगा, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक अपना कॉर्पोरेट कल्चर होगा। तो वो जो क्लैश ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर है, दैट इज ऑल्सो अ बिग इशू।
मर्सिडीज बेंज ने जो अमेरिकन कार कंपनी थी ना क्राइसलर, वो टेक ओवर कर ली थी. इट वॉज नॉट अ को ब्रांडिंग थिंग, इट दे जस्ट टुक ओवर इट. ठीक है. एंड दे वांटेड टू रीवैम्प एवरीथिंग एंड यू नो bring that brand to you know path of recovery. लेकिन वो जो है वो ज़्यादा दिन जो है ये एसोसिएशन नहीं चल सकी, इन द सेंस के वो अमेरिकन कल्चर और जर्मन कल्चर का क्लैश था वहाँ पे. Germans, you know, do their work in a different manner, and you know, Americans do their work in a different manner. And Americans are, you know, very headstrong in that they don't want to learn from anybody else. वो समझते हैं कि जो वो कर रहे हैं कोई और उस तरह कर ही नहीं सकता, और इंडीड कोई और उस तरह नहीं कर सकता. जो वो बेड़ागर कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता. They have taught the world to lead, but then again, on their path to success, they got lost. ठीक है. So organizational distractions are also there, क्योंकि जो है अगर वो ब्रांड चल पड़ता है तो फिर जो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो सफ़र करने लग जाता है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू यू नो गेट ऑन दैट बैंड वैगन ऑफ सक्सेस कि ओ यार यहाँ पे तो जो है ये ब्रांड तो चल पड़ा है और इसमें जो है बड़ा फ़ायदा है और मैं इसमें ग्रो कर सकता हूँ. तो वो जो डिस्ट्रैक्शंस है ना उस किस्म की वो आपको ले जाती हैं टूवर्ड्स डूम. अब इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग में क्या है कि जी स्पेशल केस ऑफ को ब्रांडिंग दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ब्रांड equity for materials, components or parts that are necessarily contained within other branded products. Example, Betty Crocker's baking mixes with Hershey's chocolate syrup, Intel Inside. अब जो है Intel Inside तो आपने देख लिया. Betty Crocker जो है वो हमारे यहाँ अवेलेबल है, लेकिन to a very selected target market. So not many people know about it कि वो जो है क्या है. लेकिन वो जिस तरह आपका लजीजा खीर मिक्स वगैरह है ना, इसी तरह इन्होंने जो बेटी क्रॉकर है वो आपका केक मिक्सेस जो हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं कि आपने केक बनाना है तो इंस्टेंटली मकसद एवरीथिंग इज़ देयर, बस वो उसको यू नीड टू मिक्स इट विद वाटर और मिल्क और समथिंग लाइक दैट एंड देन यू नो पुट इट इन द ओवन फॉर बेकिंग. तो उन्होंने जो है वो हर्शीज़ चॉकलेट सिरप कर दिया है. हर्शी इज़ अ बिग चॉकलेट ब्रांड इन अमेरिका एंड नाउ यू नो वर्ल्ड वाइड. तो वो था. यहाँ पे आप देखें अगर टेफ्लॉन अगर आपने नाम सुना हो तो टेफ्लॉन जो है वो एक कोटिंग है ख़ास किस्म की, और ये जो कोटिंग है ये अमूमन जो नॉन स्टिक पैन्स होते हैं ना, माय फीमेल students would be able to know about it, जो खानादारी से जिनका थोड़ा बहुत भी ताल्लुक है, कि जो नॉन स्टिक पैन्स होते हैं उस पे कई दफ़ा जो है वो स्टिकर लगा हुआ होता है कि जी कोटेड विद टेफ्लॉन. अब टेफ्लॉन एक ऐसी कोटिंग है कि जो कि स्क्रैच प्रूफ है विदाउट लूजिंग द कलर और द टेक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट. If it is coated with Teflon, it would be protected from scratches. तो एक बड़ी खूबसूरत सी है. तो ये जो टेफ्लॉन है इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव कोटिंग और प्रोडक्ट इन दैट रिस्पेक्ट. तो टेफ्लॉन इज़ अ ब्रांड इन इटसेल्फ. तो जो ये नॉन स्टिक पैन्स होते हैं इन पर टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है ताकि जो है वो उन पर स्क्रैच न लगे, क्योंकि अगर वंस दैट वो कोटिंग इज़ टेकन ऑफ, जिस तरह हम लोग वो स्क्रब करते हैं बर्तनों को तो उस पर स्क्रैच पड़ जाते हैं और वो सारी कोटिंग उतर जाती है. तो जो उस पर टेफ्लॉन हुई हुई होती है वो ज़रा ज़्यादा देर रह जाती है. इसी तरह जो ठंडे ममालिक हैं जहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होती है वहाँ पे जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों के ऊपर जो है वो टेफ्लॉन की कोटिंग कर दी जाती है ताकि जो है वो गीले ना हों, प्रोटेक्शन हो जाती है, और जो है ब्रीदेबल भी होते हैं. तो वो जो है लोगों का पसीना बाहर आ सकता है एंड देन अगेन लेकिन वो गीले नहीं होते हैं कपड़े, क्योंकि बर्फ़बारी हो या बारिश हो तो उसमें वो बचत हो जाती है, तो कपड़ा जो है वो बच जाता है. तो लेकिन उस कपड़े की कीमत जो है उस कोटिंग के बाद वो 5 गुना ज़्यादा हो जाती है.
या 4 गुना ज़्यादा हो जाती है, बट पीपल पे फॉर इट बिकॉज उसमें जो है उनके कपड़े की बचत ही है ना. तो just to make their clothing more credible or their kitchen utensils more credible, तो वो टेफ्लॉन प्रोटेक्टेड बाय टेफ्लॉन जो है उसके ऊपर लगा देते हैं. इवन अब जो है पेंट्स जो हैं उसके अंदर वो जो है टेफ्लॉन वो ऐड कर देते हैं ताकि जो है जब आप वो उसको लगाएं तो उस पर कोई दाग धब्बा नहीं लगेगा, वो इजी टू क्लीन हो जाते हैं एंड दे स्टे देयर फॉर मैनी ईयर्स. फिर जो है आपके पास जो है एक लाइसेंसिंग वाली एक है सेकेंडरी ब्रांड एसोसिएशन के लिए, कि लाइसेंसिंग क्या कह रही है कि जी इट इन्वॉल्व्स इन कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स वेयर बाय फर्म्स कैन यूज द नेम्स, logos, characters and so forth of other brands for some fixed fee. यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या हैं? स्टार वॉर्स, जुरासिक पार्क, सिम्पसन्स, मिकी माउस, केल्विन क्लाइन, पियर कार्डिन. मकसद ये सारे लोग जो हैं ये लाइसेंसिंग के थ्रू आपको अपनी चीज़ बेचने देते हैं. पाकिस्तान में भी आप देखें ये जो लीवाई स्टोर हैं अब जगह जगह हर शहर में खुलते जा रहे हैं, ये वाया लाइसेंसिंग है कि यू गेट अ लाइसेंस एंड यू सेल देयर प्रोडक्ट, यू गेट अ लाइसेंस, यू स्टार्ट मेकिंग दैट प्रोडक्ट. ठीक है. बच्चों के जो है पेंसिल बॉक्सेस हैं, कलरिंग बुक्स हैं, स्कूल बैग्स हैं विद दिस डिफरेंट डिज्नी कैरेक्टर्स एंड मार्वल कैरेक्टर्स, ये सारे के सारे वाया लाइसेंसिंग हैं. And kids go nuts when they are going to the bookshop. They want their coloring book, they want their colors, they want the pen, pencil, water bottle, bags, everything. उनको जो है इन कार्टून कैरेक्टर से या इन कैरेक्टर से मोहब्बत है भाई. उनको जो है ये बुक्स, बैग्स, ये सब चीजें चाहिए. इवन जो है अगर आप देखें कि वो इन स्पाइडरमैन और सुपरमैन और बैटमैन के कॉस्ट्यूम्स बिकते हैं, वो पहने होते हैं. लड़कियां जो है वो बारबी के जो है वो फ्रॉक्स उन्होंने लिए हुए होते हैं, सिंड्रेला के फ्रॉक्स लिए हुए होते हैं, और वो जो है अच्छे क्यूट क्यूट बच्चे जो है वो आपको नज़र आएंगे इन टाइम जब स्कूल में कोई फंक्शन वगैरह होता है वहाँ पे. ठीक है ना. तो ये जो लाइसेंसिंग है इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर एनी ब्रांड. यहाँ पे जो आप ये देखते हैं जो सबवे है, मैकडोनल्ड्स है, हार्डीज, ये वाले ब्रांड्स हैं, ये फ्रेंचाइजीज हैं, दे आर नॉट लाइसेंसेस. ठीक है. सो अंडर दैट एग्रीमेंट आप क्या है कि you cannot sell anything else other than the franchise license that you have. उसमें जो है चीज़ जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, कंपनी प्रोवाइड करती है, आपने सिर्फ उसको बना के लोगों तक पहुंचाना है. यू पे अ सर्टेन फ्रेंचाइज फी. और इस तरह जो लाइसेंसिंग में है आपके पास वो राइट्स आ जाते हैं टू मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट. फ्रेंचाइज में आपके पास वो नहीं है, उसको मैन्युफैक्चर करने के राइट्स आपके पास नहीं होते. तो बहुत सारे जो हैं क्लोथिंग लाइन जो है वो पाकिस्तान में बनती है और फिर वो एक्सपोर्ट हो जाती है, एंड दैट इज डन ऑल थ्रू अ लाइसेंस. एंड दे हैव अ लाइसेंस टू make those clothes, but they do not have a license to sell in Pakistan. जितने भी कपड़े हैं वो बनते हैं, उसके बाद वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं. फिर सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स हैं. सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट में क्या है कि जी इट ड्रॉज अटेंशन टू द ब्रांड, इट शेप्स द परसेप्शन ऑफ द ब्रांड. Celebrity should have a high level of visibility and rich set of useful associations, judgments, and there are Q ratings to evaluate the celebrities. ये एक जो है अब यहाँ पे जो गॉट मिल्क जो है
ये उसका ऐड है, दो मैं आपके लिए लेके आया था, जो कि इसमें एक में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन हैं और दूसरी तरफ पीट सैम्प्रस है, दोनों सेलिब्रिटीज़ हैं। और ये जो डेयरी मिल्क एसोसिएशन है ऑफ अमेरिका, दे थॉट कि यार वी नीड टू सेल आवर मिल्क because people are not drinking milk, they are more into juices and colas and coffee and stuff, और दूध जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास सरप्लस होता जा रहा है। तो उन्होंने डिफरेंट सेलिब्रिटीज से हेल्प ली और दिखाया, और ये जो है उन्होंने डिफरेंट सेलिब्रिटीज से हेल्प ली। और ये जो है अगर आप देखें तो ये मिल्क मुस्टैश जो है यहाँ पे विजिबल है। तो ये जो है ये इनका एक सॉर्ट ऑफ वो बन गया था, इमेज बन गया था कि जो जितने भी आप इनके वो जो है एड देखेंगे तो वो इमेज में आपको ये मिल्क मुस्टैश जो है वो नज़र आएगी। मैंने आपके एक और ऐड है जो कि ओमेगा का है, और क्योंकि ओमेगा जो है इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद जेम्स बॉन्ड, तो उस ऐड में जो है यू वुड सी कि जेम्स बॉन्ड इज़ वेयरिंग दैट ओमेगा वॉच। और आप जब मूवी देखेंगे तो उसमें भी वो जो है वॉच वो कई दफ़ा आप देखेंगे नज़र आती है। और हर जो नई बॉन्ड मूवी आती है उसमें एक नई ओमेगा की वॉच उसने पहनी हुई होती है, विच इज़ ओमेगा सी मास्टर। तो वो जो सेलिब्रिटी है वो इंडोर्समेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है। और जो है दिस इज समथिंग विच दे काउंट ऑन। फिर अगर आप नाइकी देखें तो नाइकी ने दुनिया के जो बेहतरीन एथलीट्स हैं जो कि नंबर 1 और नंबर 2 हैं इन देयर ओन फील्ड, तो उनको जो है उन्होंने इंडोर्स किया हुआ, वो इंडोर्स करते हैं नाइकी की प्रोडक्ट्स को, और नाइकी जो है वो उनको प्रोवाइड करता है उनकी इक्विपमेंट से, यूनिफॉर्म वगैरह ये सारी चीज़ें, शूज़, ये सारी वो उनको वो देता है। सो आप देखेंगे उसमें टाइगर वुड्स भी हैं, उसमें रोनाल्डो भी है, उसमें जो है मेसी भी है, पर्सी भी है, लाइक ऑल ऑफ दीज पीपल दे विल बी वेयरिंग नाइकी यूनिफॉर्म्स provided by Nike, and the shoes that they wear and everything else, most of the footballs and rackets and golf sets, cricket bats now, क्योंकि इंडिया जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है एंड सो इज़ पाकिस्तान नाउ, तो उन्होंने देखा कि यार क्रिकेट के शूज़ तो हमने आज तक बनाए नहीं थे, स्क्वाश के शूज़ हमने बनाए नहीं थे, तो नाउ दे हैव स्टार्टेड मेकिंग शूज़ फॉर स्क्वाश प्लेयर्स, दे स्टार्टेड मेकिंग शूज़ फॉर क्रिकेट प्लेयर्स, और वो यहाँ पे साउथ एशिया में उनको मार्केट करते हैं। और उन्होंने इवन जो है वो क्रिकेट के बैट्स एंड क्रिकेट के बॉल्स जो हैं वो भी बनाने शुरू कर दी, बिकॉज नाउ दे फील कि ये एक बहुत बड़ी जो है वॉइड उन्होंने छोड़ दिया था फॉर अदर्स टू फिल, और अब आहिस्ता आहिस्ता दे आर फिलिंग इट। अब क्या होता है कि सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स में थोड़े से इश्यूज हैं, और वो इश्यूज क्या हैं कि समटाइम्स जो सेलिब्रिटी है इज़ ओवर यूज्ड, तो और वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में आ जाता है, तो वो जो एक उसका चार्म होता है ना वो ख़त्म होने लग जाता है। अब जो है जैसे अगर आप देखें तो तेंदुलकर जो है वो कभी कैमरा बेच रहा होता था, तो कभी जो है वो दूध बेच रहा होता था, तो कभी वो गाड़ी बेच रहा होता था। गर्ज ये कि हर चीज़ जो है वो तेंदुलकर से उन्होंने एसोसिएट कर दी थी, बिकॉज ये दे प्रैक्टिकली दे बिलीव दैट ही इज़ अ डेमी गॉड। तो इंडिया में तो उसका जो है स्टेटस ही बहुत डिफरेंट है, तो वो जिसको कहते हैं कि वो उसको पूजते थे, तो वो कुछ भी बेच सकता था। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो ओवरऑल जब आप तेंदुलकर की इतना एक्सपोजर देखते हैं तो मकसद यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट ही इज सेलिंग, विच ब्रांड ही इज इंडोर्सिंग, ठीक है ना। तो जो है जब भी आप कोई भी सेलिब्रिटी चूज करते हैं तो आप ये देखें कि कोई रीजनेबल मैच है आपके ब्रांड के साथ, कैन यू रियली एसोसिएट
with that celebrity. अब अगर आप शैम्पू बेचने लगे and you know the celebrity does not even have a single hair on his head, तो वो शैम्पू क्या करेगा भाई, ठीक है ना. So in order to sell that shampoo, you need, you know, a celebrity with good set of hair on his head or her head, जिसको आप शो कर सकें, ठीक है ना. तो इसीलिए आप देखें कि जो सेलिब्रिटीज चूज की जा रही हैं टू सेल दीज शैम्पूज हैव अ गुड सेट ऑफ हेयर ऑन देयर हेड, जो कि विच आर यू नो वेरी ब्यूटिफुल एंड यू नो दे हैव स्ट्रॉन्ग कलर्स. तो उसको जो है वो इंडोर्स करती हैं, जिसमें जो है आपके ये करीना कपूर एंड there was this even Katrina Kaif, she was there for Lux, and there was Shilpa Shetty for Pantene, इस तरह Elena D. Cruz for Clinique. तो आप ये देखें कि ये जो सारे हैं लोग फिर देन रोनाल्डो को लेके आए फॉर क्लिनिक. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू सी कि वो जो है एक मैच बनता भी है या नहीं बनता है. फिर अगर सेलिब्रिटी जो है वो कहीं नेगेटिव मीडिया में आ जाए तो वो जो है ब्रांड जो है वो भी प्रॉब्लम में आ जाता है. जिस तरह अगर आप ने फुटबॉल मैचेस अगर फॉलो किए हों तो सोरेज ने जो है वो जब काटा था, सोरेज आई गेस प्लेयर फ्रॉम अर्जेंटीना, तो उसने जब काटा तो वो एक नेगेटिव पब्लिसिटी उसके आ गई, और नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से उसको जो ब्रांड जो वो इंडोर्स कर रहा था, दे हैड टू यू नो पुल बैक दैट ब्रांड फ्रॉम दैट मीडिया उस वक्त जो चल रहा था, ताकि जो है ब्रांड का जो इमेज है वो ख़राब ना हो. बट देन अगेन आफ्टरवर्ड दे रियलाइज कि नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी कि दे शुड पुल आउट. तो ये जो है ये उस वक्त ब्रांड मैनेजर जो भी होगा, ही और शी हैज़ टू यू नो मेक डिसीजन कि वेदर टू गो अहेड और टू stop. And then many consumers feel that celebrities are doing the endorsement for money and not necessarily believe in that endorsed brand, which is true to an extent. कि जो है जो celebrities हैं, they are only concerned कि हमें पैसे कितने मिलेंगे और वो endorse कर देते हैं उस brand को. और जिस तरह वो brand के लिए वो स्पोक्स पर्सन बने हुए होते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि वाकई वो ब्रांड जो है अपने उस प्रॉमिस को फुलफिल भी करता है या नहीं करता है. तो लोग जो हैं दे आर डिसअपॉइंटेड क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम्स कि जी ब्रांड जो है उस तरीके से परफॉर्म कर नहीं रहा जिस तरीके से क्लेम किया जा रहा है बाय दैट सेलिब्रिटी. तो अब इस चीज़ को कम करने के लिए मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो है वो लॉ पास किया गया है कि जो भी सेलिब्रिटी जो है इंडोर्स करेगा किसी ब्रांड को, तो उसको इंडोर्स करने से पहले वो 3 महीने खुद उसको इस्तेमाल करेगा उस ब्रांड को, और फिर जो है वो एक सर्टिफिकेट देगा कि हाँ जी मैंने इस्तेमाल किया था एंड आई हैव फाउंड दिस प्रोडक्ट टू बी अप टू मार्क. जब वो ये साइन करके दे देगा, इट्स ओनली देन कि वो जो है वो उसके लिए वो इसको इंडोर्स कर सकता है और वो एक ऐड बनाएगा या जो भी जिस तरह भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन का जो भी मीडियम सोचा गया है वो उसमें फिर पार्टिसिपेट करेगा. ठीक है. और फिर समटाइम्स जो है सेलिब्रिटीज आर सो स्ट्रॉन्ग कि दे डिस्ट्रैक्ट या द कस्टमर फ्रॉम द ब्रांड. आपको सेलिब्रिटी तो याद रह जाती है, आपको ये नहीं याद रहता कि वो कौन सा ब्रांड था जिसको वो इंडोर्स कर रहा था. लेकिन यहाँ पे ये सारी बातें बताने के बाद वजूद मैं आपको बताऊं कि सेलिब्रिटीज हैव यू नो अ बिग इम्पैक्ट ऑन द सेल ऑफ द ब्रांड. अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले, आज से मेरे ख्याल में 4 साल पहले के 5 साल पहले,
देयर वाज लाइक प्रियंका चोपड़ा, नहीं, देयर वाज द अदर हीरोइन एक्ट्रेस जो कि लक्स को इंडोर्स कर रही थी. एंड देन सडनली शी वॉज टेकन ऑफ, उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया. एंड यू नो कैटरीना कैफ वॉज पुल्ड इन. तो कैटरीना कैफ के आने से जो है ये हुआ कि जो इंडिया में जो सेल है लक्स की वो इंक्रीज़ कर गई, और इतनी इंक्रीज़ की कि लक्स पूरे यूरोप में एक महीने में जितना बिकता था उससे ज़्यादा जो है वो एक दिन में इंडिया में बिक जाता था. यानी कि आप जस्ट यू नो थिंक ऑफ द पावर ऑफ दिस सेलिब्रिटी इट हैड, द इफेक्ट इट हैड ऑन द कंज्यूमर्स, कि वहाँ पे पूरे महीने में जितना लक्स सेल हो रहा है यूरोप में, इट्स अ कॉन्टिनेंट, इंडिया में उससे ज़्यादा साबुन जो है लक्स साबुन एक दिन में सेल हो रहा है. वैसे आपको इतना मैं बता दूं कि यूरोप की जो है ना वो 26 मुल्क आप इकट्ठे कर लेना तो वो एक इंडिया के बराबर है. बट फिर भी यू नो जो नंबर गेम है वो बहुत ज़्यादा है. इतनी सेलिब्रिटी की जो ना पावर है. सिर्फ प्रोडक्ट या ब्रांड तो वही था, उसमें कोई चेंज नहीं आया था. इट इज़ ओनली दैट यू नो द कैटरीना कैफ वॉज ब्रॉट इन. तो वो जो है हमारे यहाँ वो जो एक कॉम्प्लेक्स है ना गोरे होने का और जो ना साफ स्किन का, वो आई गेस वॉज द की प्लेयर के जब उन्होंने देखा कि जो ना सॉफ्ट वाइट क्लियर स्किन ऑफ दैट लेडी, they all thought कि you know using Lux would you know give them the same effect, and this is what you know branding is all about. They thought that brand was of value to them, and you know they started buying that product. तो एक immediately एक effect आ गया. Same is the case जब पेप्सिको ने कैटरीना कैफ को जो है स्लाइस के लिए साइन इन किया. अब वो जो है स्लाइस की जो सेल्स थी दे स्काई रॉकेटेड. कुछ समझ ही नहीं आई. मकसद किसी ने आज तक पता नहीं मैंगो जूस पिया भी था या नहीं पिया था, बिकॉज यू नो पीपल हु लाइक मैंगोज लव टू ईट मैंगोज रादर देन यू नो ड्रिंक मैंगो जूस. एंड इट वॉज नॉट इवन मैंगो जूस, इट वॉज अ मैंगो ड्रिंक. बट यू नो the sales generated after that ad was something to reckon with. मतलब उन्होंने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. So like you know the celebrity have a you know very big part to play in selling your brand. फिर sporting, cultural and other events, sponsored events can contribute to brand equity by becoming associated to the brand and improving brand awareness, adding new association. इस पे मैंने आपसे जो है लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें भी बात की थी कि उससे जो ब्रांड्स हैं जब वो स्पॉन्सर करते हैं तो दे आर स्पेंडिंग बिग अमाउंट. लाइक 1984 का जो ओलंपिक्स था ना वाज अ बिग स्पोर्टिंग इवेंट फॉर फ्यूजी फिल्म. आज तक जो है जो 1984 के ओलंपिक्स थे वो एलए में हुए थे, ठीक है. और ओलंपिक्स की हिस्ट्री में जो है क्या हुआ कि जो कोडैक है विच इज ऑल्सो अ फिल्म मेकर, हमेशा उसने स्पॉन्सर किया था ओलंपिक्स को, क्योंकि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल फॉलो इट यू नो अराउंड द वर्ल्ड. तो इट्स अ बिग स्पोर्टिंग इवेंट. तो जो ओलंपिक एसोसिएशन है उन्होंने कहा कि आप कोडेक वालों को कि आपने जो है इस दफा हमें $1 मिलियन देने. तो जो उनका तो था ना ब्रांड मैनेजर था कोडेक का या मार्केटिंग मैनेजर था, उसने पता क्या बोला, उसने कहा आप लोगों का दिमाग ठीक है, $1 मिलियन
हमारे पास ऐसे पैसे वैसे नहीं है, ये जो है $500,000 लेने हैं तो आप ले लें, नहीं तो आप जो है ना छुट्टी करें। और फ्यूजी वाला बेचारा जो है ना वो कोशिश में लगा होता है कि किसी तरीके से वो जो है ना वो स्पॉन्सर कर सके इसको, और वो उसको चांस ही नहीं मिल रहा था। एंड दिस ओलंपिक कमेटी वाज शॉर्ट ऑफ मनी, क्योंकि उन्होंने और जगह इन्वेस्ट करना था, स्टेडियम्स में, और यू नो अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो थी वो बढ़ गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि यार ये हम क्या करें। तो जो सेकेंड ब्रांड विच केम टू देयर माइंड वाज फ्यूजी। तो उन्होंने फ्यूजी वाले को जो है बुलाया और उन्होंने कहा कि यार इस तरह है कि देयर इज दिस ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी इन द 1984 ओलंपिक्स, एंड इफ यू वांट you could have it for $1 million। जो फ्यूजी का ब्रांड मैनेजर था ना, उसको तो समझ ना आए कि वो क्या करे, किसका माथा चूमे। उसने कहा जी $1 मिलियन। उसने उसी वक्त चेक जो है ना $1 मिलियन का उनके हाथ में दे दिया, और बाद में उसने जाके जो है हेड ऑफिस से अप्रूवल ली। मीनिंग ये कि ही वॉज सो कॉन्फिडेंट दैट ही वुड मेक सो मच मनी कि ही डिडंट इवन थिंक ट्वाइस कि मुझे जो है किसी से पूछ लेना चाहिए या किसी से बात करनी। उसने कहा इससे पहले कि कोई और ये अपॉर्चुनिटी जो है वो ले ले, मेरे पास इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती। और उसने उनको $1 मिलियन दे दिए, और उसने उनसे फिर जो है बाकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो बाद में उन्होंने पूछी कि जी, उन्होंने कहा कि जी वो जो है आप जो है अपनी जो डब्बी होगी उसके ऊपर जो है वो हमारा लोगो जो है ओलंपिक्स का छाप सकते हैं, और ऑफिशियल स्पॉन्सर्स और ये जो है ना ये लिख सकते हैं, एंड ब्ला ब्ला, यहाँ पे जो है आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी, यहाँ आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन लोगों को जो है वो फिल्म मिलनी चाहिए जगह जगह पे। उसने कहा जी कोई इशू ही नहीं है, आप बस छोड़ दें, मुझ पे छोड़ दें आप। एंड टू द सरप्राइज ऑफ कोडैक, मकसद उन्होंने बाद में जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि जी बताएं फिर ब्रांडिंग के बारे में क्या करना है वहां पे। तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। कहा व्हाट, आपने कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव गिवन इट टू हुम? उन्होंने कहा जी फ्यूजी। उन्होंने कहा हाउ कम? उन्होंने कहा वी आस्क्ड फॉर द मनी एंड दे वर रेडी टू पे फॉर इट। और जी जो कैपिटलाइजेशन है एंड क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द कस्टमर्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर 50 फुट पे एक कियोस्क लगा दिया वेयर यू कुड गेट द फिल्म। डिस्पोजेबल कैमरास बना दिए, वो वहां पे अवेलेबल कर दिए। इवन जो जहां पे लोग बैठे हुए थे ना, वहां पे उन्होंने वेंडिंग मशीन्स लगा दी स्टेडियम के अंदर। कियोस्क्स तो है ना अराउंड द स्टेडियम, उन्होंने वेंडिंग मशीन्स अंदर रख दी। उस वेंडिंग मशीन में क्या, आप पैसे डालें और वो जो आपको जौन सी भी फिल्म चाहिए अपने कैमरा के लिए वो आप उधर से निकाल लें। उन्होंने जो है उन पिक्चर्स को डेवलप करने के लिए छोटी छोटी शॉप्स बना दी, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी थी ना, दे कैपिटलाइज्ड ऑन इट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना कि जी अमेरिका जो है, अमेरिकी काम तो बहुत अच्छा करते हैं, वो आपको पहले रास्ता दिखा देते हैं, उसके बाद जो है वो खुद ही उसको खराब भी कर देते हैं, ठीक है ना। वो क्राइसलर और जब मर्सिडीज की बात कर रही थी कि वो उनसे वो काम नहीं हुआ, यहाँ पे भी यही हुआ कि कोडैक जो है अमेरिकन कंपनी, ओ हमें कौन छेड़ेगा, हमसे कोई चीज ले ही नहीं सकता, वही हुआ, उनकी नाक के नीचे से जो है आके ये ले गया। और वो दिन है और आज का दिन है, आप देखें हमेशा अब जो है वो फ्यूजी ही ऑफिशियल फिल्म होती है, ऑफिशियल पार्टनर्स ऑफ द ओलंपिक्स हैं। रोलेक्स इज द ऑफिशियल पार्टनर फॉर विंबलडन, ओमेगा इज द ऑफिशियल पार्टनर फॉर ओलंपिक्स। जितना जो टाइमिंग है, जितनी घड़ियां हैं आगे पीछे लगी हुई, वो सब ओमेगा की होंगी। विंबलडन में सारी घड़ियां जो हैं वो रोलेक्स की हैं, ठीक है। और रॉजर फेडरर, वो जो है हमेशा रोलेक्स उसने पहनी हुई होगी, यू कुड सी।
जब भी आप टॉम क्रूज को देखेंगे, मिशन इम्पॉसिबल की कोई मूवी बनी होगी तो उसने बुल्गारी की घड़ी पहनी हुई होगी। जो लीडिंग लेडी होगी उसमें उस मिशन इम्पॉसिबल में, उसकी जो ज्वेलरी होगी वो भी बुल्गारी की होगी। इसी तरह जो है जो घड़ी जेम्स बॉन्ड ने पहनी हुई है वो उसकी है, ओमेगा की है। जो गाड़ी उसने इस्तेमाल करनी वो एस्टन मार्टिन है। इट इज ओनली इन 2 मूवीज कि जिसमें जो है BMW केम इन एज सब्स्टिट्यूट फॉर एस्टन मार्टिन, क्योंकि उस वक्त जो है उन्होंने वो बॉन्ड को एक ग्लोबल स्पाई का दर्जा देने की कोशिश की थी कि वो ही इज नॉट ओनली वर्किंग फॉर द ब्रिटिश एम्पायर बट फॉर द ग्लोब। तो उसमें जो है वो उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था, बट देन अगेन दे रियलाइज कि नहीं, जो जेम्स बॉन्ड है वो स्ट्रिक्टली जो है वो ब्रिटिश स्पाई है, तो इसलिए हम उसको चेंज नहीं कर सकते। सो ये जो इवेंट्स है ना वो ब्रांड की क्रेडिबिलिटी को और भी इनहेंस कर देते हैं। तो उसमें एडिडास एंड नाइकी एंड सोनी, ये सारे आप देखें, मकसद वो जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो एक वो जो साइड पे जो लगी हुई होती हैं उसको क्या कहते हैं, जो बाउंड्री लगी हुई होती है, उसमें आप देखें कि वो अब उन्होंने वो डिजिटल वो बाउंड्रीज बना दी हैं जिसमें कॉन्स्टेंटली एक मैसेज चल रहा होता है किसी ना किसी ब्रांड का। वो थोड़ी 10-15 सेकंड या 30 सेकंड के बाद वो चेंज हो जाता है, बिकॉज किसी ना किसी की वो जो है नजर उस पर पड़ेगी, वो देखेंगे कि वो जो है क्या लिखा हुआ। फिर आप थर्ड पार्टी सोर्सेज देखते हैं। थर्ड पार्टी सोर्सेज जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं हु हैव अ क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट एंड पीपल लिसन टू देम। उनकी रिपोर्ट्स के लिए लोग जो है वेट करते हैं कि जब उनकी रिपोर्ट आ जाएगी तो तब जो है वो रिएक्ट करेंगे। तो उस रिपोर्ट के अंदर जो है वो कंट्री रिपोर्ट भी हो सकती है, वो ब्रांड रिपोर्ट भी हो सकती है, वो कोई कमोडिटी रिपोर्ट भी हो सकती है। गर्ज ये कि ये जो थर्ड पार्टीज हैं वो रिपोर्ट्स निकालती हैं, उसके अंदर जो है उसको असेस करती हैं कि वो जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज कैसी हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, या जो वो ब्रांड है उसकी प्रेजेंस जो है फलानी जगह पे वो स्ट्रांग है, फलानी जगह पे स्ट्रांग नहीं है, वो वहाँ पे उसका कंपटीशन क्या है, कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, कहाँ पे जो है दे आर डूइंग गुड, उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सो वो जो है, और फिर जहाँ पे जो है वो रिपोर्ट उनकी फेवरेबल होती है वो फौरन जो है उसको कहीं ना कहीं एज अ न्यूज आइटम पब्लिश कर देते हैं। अब जिस तरह थर्ड पार्टी सोर्सेज की अगर आप बात करें तो जो HEC की जो रैंकिंग है ऑफ द यूनिवर्सिटीज, वो इट मैटर्स अ लॉट टू द स्टूडेंट्स हियर इन पाकिस्तान। तो उनके पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं दे आर ऑलवेज लुकिंग कि यार वो जो जिस यूनिवर्सिटी में हमारा बच्चा पढ़ने जा रहा है उसकी रैंकिंग क्या है, ठीक है ना। सो हाउ इज इट रैंक्ड अमंग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान। तो वो थर्ड पार्टी सोर्सेज हैं। इसी तरह जो है मैगजीन्स हैं, फैशन मैगजीन्स हैं, उनके अंदर जो है मुख्तलिफ लोग लिखते हैं, मुख्तलिफ ब्लॉग्स हैं आजकल जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, पीपल फॉलो देम। ट्विटर पे बहुत सारे लोग जो हैं वो बैठे होते हैं, वो अपनी स्टोरीज उसमें अपना लिख देते हैं, तो लोग उसको पढ़ते हैं एंड देन दे फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट सर्टेन ब्रांड्स एंड सर्टेन प्लेसेस एंड सर्टेन पीपल। So this is also a very big, source as to which one can, associate to, and like, they then, these brands, are, always following these people and, trying to influence them in one way or another so that, they give a positive feedback to the customer. तो इसके साथ ही आज की जो बात थी वो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मैंने आपको जो है आज बहुत सारे जो सेकेंडरी एसोसिएशंस हैं फॉर द ब्रांड, जिनसे ब्रांड सीखता है और जो है हेल्प लेता है ताकि लोगों में अवेयरनेस मज़ीद बढ़े और रिकॉल और रिकग्निशन हो, और उससे जो परचेज़ है वो बढ़े, कंजम्पशन जो है वो बढ़े, और उस पर हमने बात की है। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में फिर हाज़िर होऊंगा और आपको मज़ीद ब्रांडिंग के बारे में बताऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।